Hello guys, this is second part of power. If you haven't seen first part of power, there we have studied power triangle, basic concepts of power, means different type of powers. There we have discussed like active power, reactive power, apparent powers. So you need to watch or understand this video before this. There I have explained very basic concepts about active power, reactive power and apparent powers. Then after come here to watch. Okay guys, और हाँ, if you cannot see proper video quality, then you can increase video resolutions. ओके गाइज, यहाँ पे हम देखते हैं एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर. इसका जो बेसिक जो टर्म्स बनते हैं, जो पॉपुलर टर्म्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे गाइज. काफ़ी पॉपुलर और बेसिक कंटेंट्स है जो कि मैंने लिया हुआ है. सो देखिए, इसके पहले जो लिया था वहाँ पे भी काफ़ी बेसिक था और पॉपुलर था, मीन्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके गाइज, सो लिसन हियर. एक्टिव पावर. Active power, what are the alternatives name for active power? That we can say useful power, real power, true power, average power, net power, real power. These are the names for active power. Reactive power guys, reactive power, it is imaginary or false power. Imaginary or false power. If you cannot understand before to watch first part of the same topic. So firstly need to watch first part, I mean understand first part of this topic. Then you can understand very better understand active, reactive and apparent power. So reactive power, what it is? Imaginary power, false power it is guys. So and by what letter it denotes? Q. By what letter active power denotes? P. So remind this. Then apparent power, this is the total power. Which power? Apparent power, total power. And by what letter it is denoted? Yes. Okay. And apparent power, what? Total power. Total power is nothing but the sum of active and reactive power guys. So now here active power, how we can calculate active power in terms of how we can calculate active power? Vi into cos theta. V means voltage, I means current, cos theta, this is the power factor guys. Power factor, it is useful power, it is consumable power. So that's why we need to consider power factor here, because it is consumable power. So voltage into current into power factor, this is the product of active power guys. Okay, active power denoted by P. So in this way we can calculate active power guys. Then reactive power is denoted by the Q. And how we can calculate? Voltage into current into sin theta. It is nothing but imaginary power, and this power, magnetism in the circuit caused by only reactive power, because it is imaginary false power. Okay, how we can calculate? V into I into sin theta. So it is denoted by the Q. So this is okay. So here apparent power, S is equal to S, it denoted by apparent power, S is equal to voltage into current. Simply, very simple. अपेरेंट पावर. ओके, अपेरेंट पावर क्या होता है? वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है. तो यहाँ पे इसमें इस रो में अगर हमें ध्यान में रखना है, कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो क्या ऑब्जर्वेशन में मिलता है गाइज हमें? यहाँ पे देखो वोल्टेज करंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. बट एक्टिव पावर में पावर फैक्टर है, दैट मीन्स कॉस थीटा, एंड रिएक्टिव पावर में साइन थीटा है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है. सो वेरी इजी टू रिकॉल, वेरी इजी टू फिट इन माइंड. ओके, देन second feature, unit. What is the unit for active power guys? Watt. And how it is denoted? By W. Consumable power, that we are using. Okay, then active is the unit for volt ampere reactive. This is the unit to power. Apparent power guys, volt into ampere, volt into ampere. Then next, what we notice here? What we notice in this row? Here active power denoted by watt, reactive power denoted by VAR, that means volt ampere reactive, and apparent power, simple power, that is denoted by volt ampere. Okay, so then delta star. So
Before this, we need to understand delta and star. What is meant by delta and what is meant by star? As we can see here in the in this pattern, guys. So delta, this is a delta. It is the delta and it is star. So here I can write here delta. Delta, this is okay, and it is star. So what is the pattern? Delta, here you can see here close figure. Delta is the close figure and star not. So delta हम देखते हैं, delta star what it is? Delta और star it is nothing but the pattern of connections in the winding या कंडक्टर्स में जो पैटर्न होता है कनेक्शन का, उसे हम डेल्टा या तो फिर स्टार कहते हैं, वो कनेक्शंस के पैटर्न को. सो डेफिनेटली कनेक्शंस के पैटर्न ये दोनों के दोनों डिफरेंट है. दैट्स वाई फीचर्स इन दैट पैटर्न आर आल्सो डिफरेंट. सो डेल्टा हियर वी कैन सी हियर डेल्टा एंड स्टार. ये फर्स्ट कंडक्टर है, ओके, ये सेकंड कंडक्टर है, सो ये थर्ड कंडक्टर है. सो ओके, तीनों जो कंडक्टर है 1 2 3 वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है. ये डेल्टा में होता है. बट हियर ये फर्स्ट कंडक्टर है, ये सेकंड है, तो ये थर्ड है. यहाँ पर देखते हैं हम फर्स्ट कंडक्टर का फर्स्ट एंड यहाँ पे मीट हुआ है और सेकंड एंड सप्लाई के लिए निकाला हुआ है. सेकंड कंडक्टर के इसमें देखते हैं तो इसका फर्स्ट एंड यहाँ पे मीट होता है कॉमन पॉइंट पे, और यहाँ पे जो सेकंड टर्मिनल है वो आउट हुआ है. थर्ड कंडक्टर का देखते हैं तो ये फर्स्ट एंड मीट हुआ है कॉमन पॉइंट को और सेकंड एंड सप्लाई के लिए आउट हुआ है. सो यहाँ पे देखते हैं तो जो एंड है, सेकंड टर्मिनल है सभी कंडक्टर का, वो सप्लाई के लिए आउट हो चुका है, और फर्स्ट एंड है वो उसका कॉमन पॉइंट निकाला है. सो यहाँ से इस प्रोविज़न से हम ये समझ सकते हैं गाइस कि ये वाला कॉमन पॉइंट है और बाकी जो है ये फेज़ है गाइस. ये क्या है, फेज़ है. ओके, जैसा कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आर वाई बी, ओके, और ये वाला क्या होगा, कॉमन से निकाला हुआ है तो न्यूट्रल होगा गाइस ये वाला. और यही अर्थ किया जाता है जहाँ पे भी स्टार कनेक्शंस होता है, लाइक इन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर. A delta here is not provision to make out common. So here we can see here only phase here. Okay, we can arrange here neutral by artificially, no matter, but now in this case not. Okay, so guys अभी ये भी समझना important है हमें कि सिंगल फेज टू फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज. देखो ये भी important है, फेज वोल्टेज, फेज और लाइन. ओके, बिफोर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड फेज एंड लाइन. वेरी इंपॉर्टेंट दीज आर फेज एंड लाइन. किसे हम फेज कहेंगे और किसे लाइन कहेंगे गाइस. सो देखिए यहाँ पे जैसे 3 कंडक्टर हैं हमारे, 3 फेज है. ओके, यहाँ पे देखिए ये 3 फेज है गाइस. ए आर है, ए वाई है और ए बी है गाइस, और ये न्यूट्रल है. ओके, न्यूट्रल है. अभी जैसा हमें देखो फेज वोल्टेज होता है, फेज करंट होता है, लाइन वोल्टेज होता है, लाइन करंट होता है. किसे हम कहते हैं एग्जैक्टली. सो देखिए फेज अगर वोल्टेज की बात करते हैं, फेज वोल्टेज, तो आर और एन मीन्स न्यूट्रल, और कोई भी एक फेज इसमें से आर वाई बी में से कोई भी एक फेज हम कंसीडर करते हैं और इसके बीच का जो वोल्टेज होता है उसे हम कहते हैं फेज वोल्टेज. दैट मीन्स फेज and one phase and neutral, the voltage between them is a phase voltage. Then line voltage guys, line voltage between two phases, any two phases, R Y consider या तो फिर और Y B और B R और B R या तो फिर R B. सो दो फेज के बिटवीन जो वोल्टेज होता है, दो फेज के बिटवीन उसे हम दो फेज के बिटवीन जो वोल्टेज होता है उसे हम लाइन वोल्टेज कहते हैं गाइस. लाइन वोल्टेज दो फेज के बिटवीन होता है. और फेज वोल्टेज किसको कहते हैं. सो सिंगल फेज, एनी सिंगल फेज एंड न्यूट्रल इसके बिटवीन में होता है, उसे फेज वोल्टेज कहते हैं. एंड सेम इन केस ऑफ करंट आल्सो. सो देखिए किसी भी एक फेज में जो करंट फ्लो होता है उसे हम फेज करंट कहते हैं, और दो फेज में करंट का जो सम होता है, दो फेज में जो करंट फ्लो होता है और उसका जो सम होता है उसे हम लाइन करंट कहते हैं गाइस. लाइन करंट, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फेज एंड लाइन. ओके,
सो दैट मीन्स इससे क्या नोटिस हुआ है गाइज, सो यहाँ पे 3 फेज है, तो दैट लाइन वोल्टेज मतलब 3 फेज का कंसिडरेशन नहीं है, 3 फेज का सम नहीं है, तो 2 फेज का सम है. सो पॉइंट टू बी नोटेड दिस इज ओके. एंड फेज वेरी सिंगल ओनली. ओके, सो देन नेक्स्ट गाइज, सो डेल्टा. In terms of delta, how we can calculate the power? 3 phase voltage, phase current, cos theta, that means power factor. So क्या होता है डेल्टा में, कैसा निकालते हैं हम? 3 और फेज वोल्टेज, फेज करंट और पावर फैक्टर, ऐसा हम डेल्टा में पावर निकालते हैं. इसे हम डेल्टा में जो पावर होता है उसे हम फेज पावर भी कहते हैं गाइस, और स्टार में जो पावर होता है उसे हम लाइन पावर कहते हैं गाइस. ए फेज पावर एंड दिस इज द लाइन पावर. So in terms of active we can calculate in this way, in terms of reactive we can calculate in this way. That means just we have add here in place of cos theta sin theta. Okay, and here very simple 3 into phase voltage phase current. Okay, देखो यहाँ पे अगर इस रो की बात करते हैं डेल्टा, फेज पावर की बात करते हैं तो सेम है लाइक दैट. ओके, सिर्फ यहाँ पे क्या हमने क्या किया, फेज वोल्टेज फेज करंट लिया है, तो यहाँ पे हमने सिंपली वोल्टेज करंट लिया हुआ है, सिंगल फेज का है. ओके, सो ये वाला 3 फेज का फेज पावर है, ये सिंगल फेज का फेज पावर है, तो ये 3 फेज का फेज पावर है. फेज पावर डेल्टा में मिलता है. ओके, सो देन स्टार में क्या होता है गाइस, यहाँ पे डेल्टा में हम 3 लेते हैं गाइस, डेल्टा में सिंपली 3 लेते हैं, तो स्टार में हम √3 लेते हैं गाइस. सो पॉइंट टू बी नोटेड दिस इज कंपैरेटिवली. ओके, डेल्टा में हम 3, तो यहाँ पे √3. देन यहाँ पे फेज वोल्टेज फेज करंट लिया है, तो यहाँ पे लाइन वोल्टेज लाइन करंट लिया हुआ है स्टार में, बिकॉज हियर वी कैन डिटरमाइन लाइन पावर गाइस. हियर ऑल्सो सेम √3 लाइन वोल्टेज लाइन करंट साइन इंटू साइन थीटा. हियर सिंपली √3 लाइन वोल्टेज लाइन करंट. ओके, सो ये तो सारा बेसिक है. ऐसा कंपेरेटिवली आप स्टडी करते हैं तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ध्यान में रहेगा, एंड स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एट द एग्जाम इट इज़ ईजी टू रिकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये जो यहाँ पे मैंने 2 कंडीशंस लिखा है, ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये स्टार की कंडीशन है गाइस, स्टार इन केस ऑफ स्टार, और ये जो कंडीशन है गाइस वो डेल्टा की है इन केस ऑफ डेल्टा. ओके, स्टार की कंडीशन, सॉरी ये जो कंडीशन है वो स्टार में होती है. कौन सी कंडीशन? लाइन करंट जो होता है वो फेज करंट के इक्वल होता है एग्जैक्टली. क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं गाइस स्टार में देखो स्ट्रेटली जैसा अगर करंट निकलता है तो डायरेक्टली फ्लो होता है गाइस. कहीं पे भी यहाँ पे क्लोज फिगर नहीं है ये वाला, इसलिए मैंने बताया था. सो यहाँ पे जो होता है ना स्टार में जो लाइन करंट होता है वो फेज करंट के इक्वल होता है. सो ये लॉजिकली अभी ध्यान में आ जाएंगे. अगर आप ये फिगर ध्यान में रखते हैं, पैटर्न ध्यान में रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये याद आएगा कि लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, ये स्टार में ही रहता है. अगर इफ यू आर रिमेंबरिंग दिस पैटर्न, phase current equal to line current, because here we cannot see any obstacle to flow the current here. Okay, but here vice versa. सिर्फ ए ध्यान में रख दो, ए माइंड करो तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा. मतलब क्या होगा, अगर स्टार में ए लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट है तो वोल्टेज का क्या केस होगा, इसमें वोल्टेज का अपोजिट होगा. मतलब लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 VPH होगा, है ना. और स्टार डेल्टा की बात करते हैं तो डेल्टा में जो होता है वो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है. डेल्टा में लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है. सो ओनली यू हैव टू रिमेंबर ओनली स्टार पैटर्न. सो इन दिस केस we definitely know that फेज करंट इज इक्वल टू लाइन करंट. सो देन डेल्टा में भाई फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज होगा डेल्टा में, उल्टा उसका. और ये भी यहाँ पे करंट का एक केस है, तो वोल्टेज कैसा होगा स्टार में, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 VPH, है ना. ये देखो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 VPH, है ना. ये तो भाई इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अलग अलग वे से पूछा जाता है गाइस. न्यूमेरिकल या थेरोटिकल कंसेप्ट अलग अलग वे से फॉर्मिंग अ डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम कंसेप्ट्स. ये आप ध्यान में रखते हैं तो आपका काम बन जाएगा गाइस स्टार वाला. बाकी ये जो कंडीशंस है ये ऑटोमेटिकली आपको रिकॉल हो जाएंगे. ओके, स्टार में वोल्टेज कैसा होता है,
डेल्टा में वोल्टेज कैसा होता है, डेल्टा में करंट कैसा होता है, ये सारा याद आ जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। सिर्फ आपको ए माइंडेड करने की आवश्यकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने बताया भी है कि लॉजिकली हम कैसे माइंडेड कर सकते हैं। स्टार ये पैटर्न ध्यान में रखो, सो डेफिनेटली इट विल रिकॉल। सो गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।